और जो था वो disjointed effort का था. So we're live now. Okay. So as you will get started, Assalamu alaikum and good evening, everyone. Thank you for taking the time to join us for the Candid with Pasha series. This session is especially pertinent and important, considering that we recently, the finance bill was passed, and we've invited some of our experts in several areas to join us and share their thoughts on the various aspects of the finance bill, and also air some concerns that we've been hearing from our members, some apprehensions. The technology sector is one of the fastest growing sectors in the country. As a sector, it perhaps is the fastest. Very strong numbers over the last 18 to 24 months and even before that. So we will try to spend the next 60 or so minutes in discussing some of these apprehensions, trying to see clarity on some of these areas. I'll quickly introduce some of our panel members. जैसे कहते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है कोई भी इनमें से, लेकिन as a moderator for the day, it is my humble duty to do that. I'll start off with Sadia Nazir. She's a partner in the tax practice for KPMG. She's also on the anomaly committee for established by FBR, which is so that's why Sadia Saiba, with due respect, a lot of our policy related questions will be going towards you. Thank you for your time this evening in joining us. Nasir Akhtar साहब तो बिल्कुल भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. बहुत ज़्यादा उनकी contribution है towards the IT sector of Pakistan, runs one of the largest entities with global businesses, and he's also on the Prime Minister's task force on information technology that has been functioning. और हम उनसे पूछेंगे कि उनका कैसा experience रहा इस budget making के process में from a task force member perspective as well. और एक जो अभी हमारे मेंबर हैं, एस्टीम्ड पैनल मेंबर, उनको आप देख नहीं सकते, वो जज्बाती तौर पे हमारे साथ हैं और फिजिकली भी या वर्चुअली भी हमारे साथ होंगे बहुत जल्दी. बरकान सईद चेयरमैन पाशा हैं और वो भी आईटी टास्क फोर्स के मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर की. ही इज इन कराची. Apparently there's been some weather related disruptions in Karachi, so he was with us but he just got disconnected. He will join us shortly as well. So we'll get started. My first question, Sadia, will be to you, and this is an easy one to start with so that we all get some of our thought processes flowing. Overall, when you look at the finance bill and you look at the technology sector from a tax perspective, from a services sector perspective, what would be some highlights or things that you would want this audience to know? If somebody was to ask you what are some of the key areas of the finance bill in the tax for the IT sector, what would those be from your perspective? देखिए मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो गवर्नमेंट ने की है, जो कि एट पार है इंडिया के साथ और बांग्लादेश के साथ, आपकी नॉलेज में होगा पिछले साल दिसंबर 2020 में एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, जिसमें कहा था कि हम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, इनको हम प्रमोट करेंगे और ये जो एस्टेब्लिश होंगे तो उसके हवाले से टैक्स एग्जेम्पशंस भी दी जाएंगी. वो जो टैक्स एग्जेम्पशन उसके अंदर उस जोन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के अंदर गिवन थी, वो अब उन्होंने इनकम टैक्स लॉ का पार्ट बना दिया. उसमें यह है कि आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स और इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स जो उस जोन्स अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के अंदर एस्टैब्लिश होंगे, तो फिर उसके अंदर जो एंटरप्राइजेस काम करेंगे उनको 10 साल की टैक्स एग्जेम्पशन दिया. जोन्स अथॉरिटी को भी एग्जेम्पशन दिया है. उनकी जो इंपोर्ट्स होंगी प्लांट एंड मशीनरी की, हार्डवेयर की और सर्वर्स की, उसके ऊपर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी की एग्जेम्पशन दी है. So that should go a long way in setting up, in putting Pakistan on fast track to digital development. ये एक मेजर उन्होंने जो है वो अमेंडमेंट की है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि उस एरिया पे के जो पार्क्स एस्टैब्लिश होने हैं उस पे क्या डेवलपमेंट है, उस पे नसीर साहब बेहतर बता सकेंगे, बट उसके हवाले से 10 साल की टैक्स एग्जेम्पशन उन्होंने लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी है, जोन्स एंटरप्राइजेस के लिए, जोन्स डेवलपर्स के लिए, जोन अथॉरिटी के लिए.
दूसरी जो उन्होंने मेजर चेंज की है, वैसे तो एक चेंज ये पहले आ चुकी थी कि उन्होंने जो इनकम की एग्जाम्पशन थी उसको रिप्लेस कर दिया था टैक्स क्रेडिट से। ये चेंज मार्च 2021 में ही आ गई थी एक अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू। उसको अब उन्होंने लॉ का पार्ट बनाया है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ फर्दर उसको फाइन ट्यून किया है। अब आपकी जो इनकम है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से, दैट विल बी सब्जेक्ट टू 1% फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, बट दैट इज सब्जेक्ट टू कि अगर आप फाइनल रेजिम में जाना चाहते हैं, बैंक्स आपकी विथहोल्डिंग करेंगे 1%। आप चाहें तो अगर आप यू आर कंप्लायंस इफ यू आर कंप्लायंट विद सर्टेन कंडीशंस, यू कैन अप्लाई फॉर एग्जम्पशन सर्टिफिकेट। तो उसमें उन्होंने लॉ के अंदर वो अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, उन्होंने उसको इनेबल किया है कि कमिश्नर अब एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। उसके हवाले से कुछ लोगों की कंप्लेंट्स है कि गालबन वो सिस्टम अभी इनेबल नहीं हुआ है राइस में। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट कि वो उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से सिस्टम इनेबल है। हमने सेक्शन 159 के अंदर जाके एप्लीकेशन फाइल करनी है। एंड द गुड थिंग इज दैट कि आप उन्होंने अब इस दफा ऑटो अप्रूवल का भी उसके अंदर डाल दिया है। लाइक अगर कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं करता विद इन 15 डेज, तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली अप्रूव कर देगा। फिर उसके बाद अगर कमिश्नर रिजेक्ट करना चाहिए, he has to confront you, he has to give you an opportunity of hearing। तो इस दफा इन्होंने काफी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए हैं, जो कि उस वक्त नहीं थी जब इन्होंने ये 1% टैक्स लगाया था इसके ऊपर, जब ये इन्होंने टैक्स क्रेडिट रिजीम लेकर आए थे मार्च 2021 में। तो इस तरह की काफी अमेंडमेंट्स हैं जो कि जैसे एज वी गो अलोंग विल डिस्कस इट मोर। पर मेन चेंज यही है कि एक तो ये एग्जाम्पशन है जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स और जोन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के अंदर जो एंटिटीज काम करेंगी उनको दी है। और दूसरे जो इनकम है आपकी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से, दैट विल बी सब्जेक्ट टू 1% if you do not if you opt for final tax regime. Otherwise you can apply for exemption certificate if you are complying with certain conditions। वो conditions क्या है? वही हैं जो पहले आई थी कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, आप विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स अपनी फाइल कर रहे हो, जो कि बड़ी कंपनी ऑलरेडी कर रही थी। जब एग्जाम्पशन भी थी तब भी ये कर रही थी। और आप सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो अगर इफ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल योर सेल्स टैक्स रिटर्न्स। तो ये मेजर अमेंडमेंट्स है इनकम टैक्स में। सेल्स टैक्स में जो उन्होंने एक बड़ी मेजर अमेंडमेंट की है, ऑल्दो उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली फेडरल गवर्नमेंट का राइट सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक सर्विसेज पे सेल्स टैक्स लगाने का है। तो यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के जो लोग काम कर रहे हैं और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें आईटी सर्विसेज हो चाहे कोई भी सर्विसेज हो, उसको उन्होंने जीरो रेटेड कर दिया, विच मीन्स कि आपकी सर्विस पे एक तरह से टैक्स तो है लेकिन जीरो के रेट पे है, और आप इफेक्टिवली आपका कोई अगर इनपुट टैक्स है उसके अगेंस्ट तो वो आप क्लेम कर सकते हैं एज रिफंड फ्रॉम एफपीआर। ये एक मेजर अमेंडमेंट है जो उन्होंने सेल्स टैक्स लॉ में की है, बट ऑब्वियसली एज आई मेंशन कि ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है। पंजाब, सिंध, केपीके और बलोचिस्तान के अपने लॉज हैं सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के, जो कि जीरो रेटिंग का कॉन्सेप्ट उनमें नहीं है, वहां पे एग्जेम्पशन है सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। तो जैसे हम डिस्कस करते हैं इसको मजीद मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे चलकर। जी, definitely, Sadi Sahib, thank you for those initial thoughts. I will definitely come back to you later on about the exemption certificates, because उस पे बहुत ज़्यादा हमें सवालात आ रहे हैं और लोगों के concerns भी आ रहे हैं. So we will seek your expert opinion on how to navigate through that. I want to give an opportunity to Nasir Saab also to talk a little bit about his impressions as a key stakeholder, as well as a constituent in the decision-making process, being part of the IT task force. Nasir Saab, your impressions of the key features of the budget in relation to the IT industry, both export and local? जी, थैंक यू मुजीब। पहली बात तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि आईटी टास्क फोर्स में इस तरह की चीज़ें अनफॉर्चुनेटली डिस्कस ही नहीं हुई, और मेरा नहीं ख्याल कि एट लार्ज ये स्टेक होल्डर्स की कोई इतनी बड़ी कंसल्टेशन हुई है इसमें। ये मतलब कि इट विल बी टू मच इफ आई से कि ये यूनिलैटरल हुआ है, लेकिन वो धक्कम पेल में जो है ना उन्होंने जो करना था वो कर दिया है। तो अच्छा, लेकिन इसकी एक बैकग्राउंड भी है, ब्लेसिंग एंड डिसगाइज। माय एक्सपीरियंस ऑफ ओवर last 15 years of global trade in services, particularly ये services, IT services, जो कि obviously are categorized invisible goods नहीं है, तो इसके ऊपर वर्ल्ड ओवर देयर आर रिफॉर्म्स कमिंग अप। आपने लेटली सुना होगा पिछले कुछ सालों में ही इवन यूरोपियन यूनियन हैज बिकम एक्टिव, और फेसबुक एंड गूगल्स एंड ऑल दैट, उनको भाई आप इतना रेवेन्यू लेके जा रहे हो, कुछ हमें भी दे के जाओ। तो ये हो रहा है। इवन माय क्लाइंट्स इन अफ्रीका,
which never used to bother deducting any withholding tax or VAT on services, they have started applying now. तो एक regime जो है taxation की broader हो रही है, rationalize हो रही है. Everybody wants to have a piece of the pudding. तो वो इसमें हमें मेंटली पहली बात ये कि तैयार रहना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा IT services और no services, and people generally believe कि it's a very profitable business, तो कोई मसला नहीं है इनको. So which is true to some extent. However, इसमें impact जो आता है वो mostly उन पे आता है जो small medium companies हैं, जो है वो growth stage में होती हैं, तो उनके कैश फ्लोज जो हैं वो बड़े इम्पैक्ट होते हैं. तो आई थिंक हमारी जो ये क्रेडिट स्कीम में 1% इज नॉट रियली अ बिग डील. द रियल इशू इज कि उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो डिटीरियोरेट होने का खदशा है इसमें जो प्रोसेस. लाइक फॉर एग्जांपल सादिया ने कहा है, एज ऑफ एन आवर अगो आई चेक विद माय फाइनेंस एंड दे सेड कि जी अभी तक वो IRS का वो फॉर्म अवेलेबल नहीं है जिसमें एग्जम्पशन का वो आप लिखते हैं, समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो द डिटेल्स, बट वो अभी शायद कर नहीं पा रहे हैं अप्लाई फॉर वन रीजन और दी अदर. बट ठीक है, वो 5 दिन में 10 दिन में हो जाएगा, वी होप सो. बट मीनवाइल वो जो बैंक्स हैव स्टार्टेड विद होल्डिंग, तो वो प्रोबेबली कैश फ्लो पे इम्पैक्ट करेगा और people will be hesitant to bring in the money. So ये इस महीने we can see, and we actually forewarned Ministry of IT and Finance कि ये impact आपका अगले महीने आपको नजर आ जाएगा, ये जो हरकत फरमाई है आपने. तो ठीक है, let's see क्या इसका होता है. But again मैं वो कह रहा हूँ कि जी 1% is not an issue. वो आप जो है ना बड़ी कंपनीज, मिड साइज की भी कुछ कंपनीज जो एक्सपोर्ट रिलेटेड काम करती हैं उस पर बड़ा इनविजिबल होता है. बाकी सारे सेक्टर भी फॉर लास्ट 20 इयर्स वो देते आ रहे हैं, बट दे आर गेटिंग इनपुट फ्रॉम सेल्स टैक्स, और इंसेंटिव जो उनको मिलते हैं उसमें वो डाइल्यूट हो जाता है, वो आपको तकलीफ नहीं देता, which is not the case with the IT industry. Neither we get any incentive nor we get any sales tax input claim हम नहीं कर पाते हैं, जो कि अब इस्लामाबाद के लिए हुआ है. And let's see how soon companies can register themselves in Islamabad, domicile change करें for this purpose, including maybe Infotech. So we will welcome you to the beautiful city of Islamabad whenever. But sir, you made a very important point. I think it's more just like you said. I think it is a matter more of inconsistency of policy and ease of doing business, where and as you very rightly said, I'll just like to add, and we'll go back to Sadia after this. कि हमने भी S&P Global being the third largest IT exporter of the country, we put our remittance on hold for now because there's no clarity. Our global offices were, there's no way right now to get a tax exemption certificate, and there's no clarity as of yet. Barkan, I'll come to you before I go back to Sadia with a more technical question around the exemption certificate. Barkan, your thoughts quickly, please, on the budget. आप भी बड़ा इन्वॉल्व थे और बड़ी बातचीत जरा आपकी चल रही थी. मैं उस पर भी मेरे 1-2 सवाल हैं स्पेसिफिकली कि हमने पहले क्या स्टेप्स लिए ताकि लोगों को उसका भी पता चले. लेकिन अगर आप जो फाइनल फाइनेंस बिल अब अप्रूव हुआ है उसके बारे में अगर अपने कुछ ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं प्लीज, तो गो अहेड. Thank you very much. So this we had an idea around March that something like this is in plans. Definitely, we were not consulted, and we were told that there is no option for you to exit out of it. This is coming. You like it or not, you have to take it. Eventually, the same thing happened. Definitely, जो इसमें जो सबसे बड़ा इशू 1% टैक्स पे करने का नहीं है. इसमें एक माइंडसेट का इशू है कि एक तो आपने मिड ऑफ द ईयर पॉलिसी चेंज की, दैट इज 2025 तक आपकी कमिटमेंट थी, आपने उसको चेंज किया. थैंक्स गॉड वी हैव, हमारे यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट इट्स स्टिल
जो बंदा देख के आया था, जिसको आप दिखा के लाए थे कि यू आर गोइंग गिव दिस एग्जाम्शन, उसको अब एग्जाम्शन आपने रिमूव कर दी है। और एक बैकग्राउंड में फिर हमने काफी आवाज उठाई, हमने लेटर्स लिखे, आई रोट अ लेटर टू द फाइनेंस मिनिस्टर, आई रोट अ लेटर टू द एफबीआर चेयरमैन, हम मिले जाके एफबीआर चेयरमैन से, और उन्होंने कहा भी कि आप लोग बहुत ज्यादा इससे तंग हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बेफिक्र रहें, कुछ भी नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं कटेगा, इतना सीमलेस प्रोसेस होगा, सारे नोटिस वापस हो जाएंगे। तो एक सुहाने ख्वाब दिखा के वापस भेज दिया। और जब ये टैक्स लगा तो एक सरप्राइज के जी 1% जो है वो आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर अस, बिकॉज दैट वाज, हमें बताया गया था कि आपको बस एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट और सब कुछ सीमलेस प्रोसेस बना देंगे और बेफिक्र हैं, सारे मसले हल हो जाएंगे। तो वो एक एक्चुअली 1% अगेन देने में कोई मसला नहीं है, और जैसा नसीर साहब कह रहे हैं ग्लोबली भी टैक्स चेंजेस आ रही हैं, बट अगेन आप देखेंगे कि ये फिलीपींस, इंडिया, बांग्लादेश, खैर उनका सेक्टर्स बहुत डेवलप हो चुके हैं, बट दे आर स्टिल गोना गो अहेड एंड गो गिव दिस एग्जाम्पशंस प्रॉब्ली। एंड पाकिस्तान जब इंटरनेशनल मार्केट में जाता था, एमएनसीज को आजकल अट्रैक्ट करने की बड़ी बातें हो रही हैं, आपको भी बुलाया होगा एमएनसीज कि जी आप आए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। तो एमएनसी जो है उसको, एमएनसी को इन्होंने अगर बुलाना है तो पाकिस्तान राइट नाउ हैज द वर्स्ट बेनिफिट्स टू ऑफर। I mean, in terms of benefits, like for example, look at what India is doing, look at what Philippines is doing, look at what Argentina is doing. वहां पे तो जब उन्होंने किसी बड़ी कंपनी को ट्रैक करना होता है तो वो स्टेट निगोशिएशन में चली जाती है कि जी आप बताएं आपको क्या बेनिफिट चाहिए और हम आपको बेनिफिट दें, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस। यहाँ पे उल्टा ये होगा कि आपका एक सेक्टर जो आपको पोटेंशियली अगले 3 साल में, 2 साल में $5 to $6 बिलियन दे सकता है, जो कि आपके नेशनल ट्रेड डेफिसिट का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर सकता है, उसको इन्होंने कहा कि जी आपसे हम डॉलर तो लेंगे लेकिन हम आपसे नोटिस रिकवरी भी करेंगे, टैक्स भी लगाएंगे और आप जॉब भी जनरेट करें, और साथ ही आपको ताना भी दे देते हैं कि आप ग्रो क्यों नहीं करते जी। ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन। और तो आई थिंक इट्स ये एक आईटी इंडस्ट्री के साथ जो उसने एक विदाउट एनी गवर्नमेंट बेनिफिट्स इन द लास्ट 2.5 years ग्रो करके दिखाया। द ओनली बेनिफिट व्हिच पास्ट गवर्नमेंट्स गेव, दिस गवर्नमेंट हैज टेकन इट बैक। एंड नाउ जिस तरह सादिया कह रही हैं कि कमिश्नर्स के पास आप जाएंगे और कमिश्नर आपको देखे ही नहीं कहेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने विदहोल्डिंग टैक्स रजिस्टर कर लिया, आपने सेल्स टैक्स रजिस्टर कर लिया, नहीं हम इतने अच्छे नहीं हैं, आप क्योंकि मुझे बताएं, साबित करें कि आप आईटी कंपनी है, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आए, आप अपने ऑडिट 3 साल के स्टेटमेंट्स लेके आए, आप यानी कि जो बंदा उनके हथे चढ़ेगा उसको वो कहेंगे कि आए आप बताएं, आप जो है वो चोर भी नहीं है और आप जो है पैसे इतने क्यों कमा रहे हैं, आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगी कि आपके विदहोल्डिंग खोल देंगे या हम आपके फर्स्ट स्टेटमेंट खोल देंगे या हम आपको ऑडिट खोलने लगे हैं। सो दीज थिंग्स आर गोना हैपन। सो लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज गोना से अच्छा भाई ठीक है, हम चुप करके 1% दे देते हैं, एंड वी आर नॉट गोना ब्रिंग एनी मनी, एडिशनल मनी टू पाकिस्तान, बिकॉज this is actually a disappointment in the state and the policy. And it's the disappointment not just in how the way negatively it is being done, but the way the industry was never consulted. I mean, this team, I get calls from, I've coordinated this to the ministry, I've coordinated this to the Economic Advisory Council. Nobody has bothered to ask us to bring us on board in the policy making decisions. I mean, वो सब हमसे ही बात कर रहे हैं, but we are not directly there anywhere, right? So the अलमिया इस मुल्क में ये है कि 2.5 साल बाद we are still not talking to the industry like the Koreans did, like the Malaysians did. The South Koreans asked their industry, how are you going to take this industry? How are you going to take yourself? How are you going to grow double? And for the last 2.5 years or for 3 years, we have been given policies all over. STZ बनाए जी, Make in Pakistan fund बनाए जी, export marketing fund बनाए, human resource train करें. Not a single thing has been done. So your tax exemption is a very signature thing of the possible treatment of what we are going to get in the next 1-2 years. Yeah. I am still very hopeful that this industry will grow to $5 billion without any government support in the next 2-3 years,
because this industry is destined to rise, and inshallah Pakistan will grow that number without any government support. But we will continue to tell that we, alhamdulillah, did not get any government support like the textile did or anyone else did. We will do it inshallah without their support. Thank you, Burkan. Understandably, I sense the disappointment and frustration in your response. I completely, having been witness to the amount of effort and time that was put by you and a lot of other people in all those consultations, as you said. So it's completely understandable. Taking sort of, as they say, looking under the hood a little bit more deeply, Sadia, I'll come to you. You talked about the tax exemption certificate. So if, for people who are listening in, if you can talk a little bit about, एक तो थोड़ा सा अगर आप process उसका elaborate कर दें, that'll be helpful. और दूसरा, इस situation में हम क्या करें? अब एक company के पैसे आए हुए हैं, बैंक पैसे काटने लगा है, उसने फोन किया है कि जी अपना exemption certificate दे दें, वो अभी जिस तरह नसीर साहब ने कहा कि फॉर्म ही अवेलेबल नहीं है। मेरी भी आज सुबह ही अपने फाइनेंस के लोगों से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि जी हमने अपनी रेमिटेंसेस होल्ड करा दी हैं, हमने अनफॉर्चुनेटली मुल्क के फायदे के लिए कुछ पैसे मंगवा के रखे हुए थे, वो लगता है एफबीआर ने देख लिए तो उन्होंने, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी पुट ऑन होल्ड फॉर द रेमिटेंसेस फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। बट इफ यू कैन प्लीज गाइड एवरीबडी थ्रू दैट कि एक ये कि इसका प्रोसेस क्या है, जो द वे इट्स सपोज्ड टू वर्क, और आज की डेट में जो सिचुएशन है उसमें हम क्या, व्हाट आर सम स्टेप्स दैट ऑर्गेनाइजेशंस कैन टेक। थैंक यू। सादिया, you're on mute. Yeah, I just noted that. सबसे पहले मैं ये क्लेरिफाई कर दूं कुछ एक अंडरस्टैंडिंग जो मुझे भी फील हुई। बलकान साहब ने भी मेंशन किया कि जो 1% आया, ये पहले कुछ हमें ख्वाब और दिखाए गए और फिर एकदम से अचानक ये 1% जो था वो सर्विसेज पे लग गया। तो इससे मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है तो शुरू से 1% पे टैक्स हो रही थी। तो हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पैनल से बड़ी पुरानी हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है इसको आप एट पार करें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के साथ। अब जब सेक्शन 154A लेकर आए हैं, वो एक्चुअली इज नॉट स्पेसिफिक टू आईटी सेक्टर, वो तमाम सर्विसेज के लिए है, जिसमें हमारी सर्विसेज भी शामिल हैं, जिसमें हर कोई जो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है, यहाँ बैठ के काम कर रहा है किसी फॉरेन कंपनी के लिए या किसी फॉरेन कंपनी के लिए बाहर जाके काम कर रहा है और पैसे यहाँ लेकर आ रहा है, उसको उन्होंने कहा है कि आप 1% टैक्स आपकी विद होल्डिंग होगी और आप ऑप्ट कर सकते हैं इसको फुल एंड फाइनल टीच करने के लिए अगर आप ये कंडीशन जो है वो पूरी कर रहे हैं। सो दिस इज ऑप्शनल बट विद होल्डिंग इन एनी केस होगी। और अगर आप एलिजिबल हैं टैक्स क्रेडिट के लिए, जैसे आईटी कंपनीज एक स्पेसिफिक सेक्शन 65F उनके लिए आया जिसमें उनको कहा गया कि आप एलिजिबल हैं टैक्स क्रेडिट के लिए, अगर ये कंडीशंस पूरी कर रहे हैं तो उसके लिए फिर उन्होंने एक कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट सेक्शन 159 में की है कि जहां पे एलिजिबिलिटी है टैक्स क्रेडिट की, वहां पे कंपनी जो है वो अप्लाई कर सकती है कमिश्नर को एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए, जिसका प्रोसीजर वही है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है सेक्शन 159 का। उसके लिए अलहदा फॉर्म आई डाउट कि कोई आएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग में अगर आपने कोई एग्जेम्पशन लेनी हो बीइंग अ रेसिपिएंट, आप सेक्शन 159 की एप्लीकेशन उसके अंदर जाके फाइल करते हैं, जिसके अंदर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में मेंशन करते हैं कि यू बीइंग दिस टैक्स पेयर यू बिलीव दैट यू आर एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65F because you are compliant with these conditions and you are enclosing copies of your sales tax returns and withholding statement and last year return, so you are requesting for issuance of an exemption certificate to you. वो एप्लीकेशन कमिश्नर इनबॉक्स में जाएगी, उसके पास मार्क हो जाएगी कि भाई ये एप्लीकेशन टैक्स पेयर की आई है, फिर वो नीचे से रिपोर्ट कॉल करेगा अपने सबऑर्डिनेट से कि भाई आप इसको वेरीफाई करें और मुझे रिपोर्ट फॉरवर्ड करें कि वाकई ये कंप्लायंट है कि नहीं, क्योंकि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है आपका। तो उसका एक प्रोसेस है जिसके उन्होंने 15 डेज का टाइम दिया है कमिश्नर को कि वंस एन एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड यू मस्ट डिसाइड इट विद इन 15 डेज, अदरवाइज सिस्टम ऑटो अप्रूव कर देगा। तो वो ऑटो अप्रूव वाला है जो कि अभी हमें पता चलेगा कि वाकई उन्होंने सिस्टम इनेबल किया है कि नहीं, बट एप्लीकेशन आपकी सेक्शन 159 में ही जाएगी। अभी एनजीओस को भी अगर एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना हो, क्योंकि उनकी भी एग्जेम्पशंस खत्म है, दे आर आल्सो एंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट, तो उनको भी एग्जेम्पशन अप्लाई करनी हो तो उसका भी अलग फॉर्म नहीं है, वो भी सेक्शन 159 में जाके ही एप्लीकेशन देते हैं कि हमारी ये इंटरेस्ट इनकम है या हमारी ये ग्रांट की रिसीट्स है या हमारी ये सर्विस इनकम है, तो हमें एग्जाम्प्ट किया जाए विद होल्डिंग टैक्स से। तो वही आप फॉर्म यूज करेंगे और अपनी कॉन्टेक्स्ट जो है उसके अंदर आप मेंशन करेंगे कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो ये उस सूरत में है अगर आप पीटीआर के लिए यानी फाइनल टैक्स रिजीम के लिए ऑप्ट नहीं करते और आप एलिजिबल हैं टैक्स क्रेडिट के लिए अंडर सेक्शन 65 है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप समझते हैं इट्स अ हैसल कि हम एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लें, फिर हम जो है वो टैक्स क्रेडिट का क्लेम फाइल करें रिटर्न में, आप कहते हैं 1% इज नॉट अ बिग अमाउंट, फाइन, दुनिया दे रही है, हम भी दे देते हैं कुछ ना कुछ टैक्स, तो आप जो है फिर आप एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई करेंगे, 1% आपका कटता रहेगा, रिटर्न के टाइम पे आपने ऑप्ट कर लेना है, ये फुल एंड फाइनल है,
जो आप ऑप्ट कर लेंगे तो आपसे फिर मजीद उस पर क्वेश्चन नहीं होंगे कि आप बताएं कि जी ये एक्सपेंसेस आपने जो इनकर किए हैं ये, क्योंकि आप क्रेडिट तो क्लेम ही नहीं कर रहे, आप तो टैक्स पे कर रहे हैं और उसको फुल एंड फाइनल एडमिट कर रहे हैं, फिर आप उसका ऑडिट नहीं होता, फिर ये होता है उसका फायदा। लेकिन जब आप क्रेडिट क्लेम जी करते हैं तो फिर आप यू आर ऑफरिंग योरसेल्फ टू टैक्स ऑडिट। Right. No, that's I was gonna come to that part because you wonder what circumstances, किस तरह की companies, again हमारे जो ऑडियंस है उसमें बड़ी कंपनीज भी हैं, छोटी भी हैं, बहुत सारी कंपनीज के अपने टैक्स कंसल्टेंट्स हैं वो उनको, लेकिन कुछ कंपनी स्पेशली जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, सादिया, इफ यू कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट, आपने थोड़ा सा उसका आंसर कर दिया लेकिन आई वुड वांट कि आप थोड़ा सा उसको अगर रीएम्फसाइज कर दें। और ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई, ये हमारा तो कम से कम मुझे जो बताया गया था हमारे फाइनेंस की तरफ से, और हमारा hमारे finance, I mean, I consider them fairly understanding of what's going on, was that there's going to be a separate procedure. But you're saying that उसी में 159 का जो फॉर्म हम पहले फिल करते थे वही फॉर्म के थ्रू आपने टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करनी है। ऐसा ही है, क्योंकि अमेंडमेंट उसी सेक्शन में आई है, कुछ सेपरेट इसका प्रोसीजर नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो चले आप अगर थोड़ा सा इस पे एलैबोरेट कर दें सादिया, जो आपने एंड में बात की ना कि कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस या कंपनीज हैं जो ये, और जो 1% का फुल एंड फाइनल अगर पे कर देंगे तो उसके क्या कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं, बाकी ऐसा है कि उनको बाद में जाके उन पे सवाल नहीं होगा, या कोई और ऐसी माशाल्लाह काफी हमारे शिके हैं और क्लॉजेज हैं जिनको यूज करके किया जा सकता है, तो बाद में अगर उस पर थोड़ा सा क्विक कमेंट्री कर दें आप, इसके बाद नसीर साहब आई एम कमिंग टू यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो ऑर्डिनेंस में दो टैक्स रेजिम्स हैं। सॉरी एक मिनट सादिया, मैं इसमें मुजीब के क्वेश्चन को थोड़ा सा लाइटली बीफ अप कर दूं, इसमें आप मुझे ये भी एड्रेस कर दीजिए, देयर आर सर्टेन कंपनीज व्हिच डू डोमेस्टिक बिजनेस एज वेल एज इंटरनेशनल बिजनेस, और उनकी बुक एक ही है, उसमें इट वाज इजियर टू हैव एन एग्जम्पशन ऑन योर एक्सपोर्ट बिजनेस, एंड डोमेस्टिक आपका जो है ना वो नॉर्मल जो टैक्स वो होता था उसमें होता है। अब व्हाट वुड बी द सिचुएशन नाउ with those people who wants to have that, let's say 50% आपका डोमेस्टिक बिजनेस है, 50% आपकी एक्सपोर्ट्स है, उनके साथ क्या होगा, ये भी जरा थोड़ा सा इसमें कर दीजिएगा। थैंक यू सर। मैं आपके क्वेश्चन को इसके साथ ही आंसर करती हूँ। अब जहाँ पे एक 50% डोमेस्टिक बिजनेस है और जहाँ पे 50% एक्सपोर्ट बिजनेस है, पहले तो ये था कि एक्सपोर्ट के ऊपर जब पैसे बाहर से आते थे कोई विदहोल्डिंग बैंक नहीं करता था, आपसे फॉर्म स्टेट बैंक का फॉर्म फिल करते थे, डिक्लेरेशन करते थे, देयर वाज नो विदहोल्डिंग और आपकी एग्जेम्पशन थी। अब उन्होंने चूंकि सर्विसेज के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड 1% लगा दिया और बैंक को कहा है कि आपने 1% विदहोल्डिंग हर उस पैसे पे करनी है जो सर्विसेज की मद में बाहर से आ रहा है, चाहे वो आईटी का हो चाहे कोई भी हो। तो उसमें अगर आपने सेक्शन 154A की एग्जेम्पशन लेनी है तो आप करेंगे क्या, आपकी लोकल रिसीट्स के ऊपर तो 3% टैक्स उसी तरह कटता रहेगा, वो तो लोकल आपका कस्टमर आपको पे कर रहा है। जो आपकी एक्सपोर्ट की रिसीट्स हैं उसके लिए आप एग्जेम्पशन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, प्रोवाइडेड कि आप फाइनल टैक्स रेजिम में नहीं जाना चाहते, आप क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं सेक्शन 65F का। आप एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट कमिश्नर को अप्लाई करेंगे और उसको बताएंगे कि जी मेरी जो एक्सपोर्ट की रिसीट्स हैं जो कि मुझे बाहर से आ रही है इस कस्टमर से, I believe that I'm eligible to tax credit under section 65F because I'm compliant with these conditions, तो आप मुझे exemption certificate issue करें। कमिश्नर जो आपको सर्टिफिकेट देगा वो सिर्फ लिमिटेड होगा आपकी एक्सपोर्ट रिसीट्स का, यानी उसमें लिखा होगा कि सेक्शन 154A की प्रोविजन से आपको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, तो सिर्फ वो आपकी जो इनकम होगी वो आपकी फिर रिटर्न के अंदर सेपरेटली, अब उसके अंदर टैक्स उसको आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा अपने रिटर्न के अंदर, क्योंकि उस पर आप टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे होंगे, जबकि जो लोकल इनकम है वो तो सब्जेक्ट टू टैक्स है जो कि 3% मिनिमम टैक्स है। तो आपको इसके अंदर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हुए एक बाइफरकेशन करनी पड़ेगी कि एक पे आप टैक्स क्रेडिट लें और एक इनकम जो है वो मिनिमम टैक्स रेजिम में रहे। बट एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट आपको मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए नहीं जाते और आपकी कोई कंडीशन भी कंप्लाइंट नहीं है, आप कहते हैं कि जी बस ठीक है 1% कोई मसला नहीं, उस केस में क्या होगा, आप एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई करेंगे, बैंक आपकी विदहोल्डिंग करता रहेगा 1%, और रिटर्न के टाइम पे आपने एक रिटर्न के फॉर्म में वो एक ऑप्शन लेकर आए हैं जिसमें आप ऑप्ट करेंगे कि आई एम ऑप्टिंग फॉर दिस 1% टू बी ट्रीटेड एज फुल एंड फाइनल। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, 3% लोकल सेल्स पे, 1% एक्सपोर्ट सेल्स पे, और वो आपका जो है वो फुल एंड फाइनल होगा। अच्छा, फुल एंड फाइनल का हिसाब ये होता है कि जहां लॉ में लिखा हो कि ये इनकम टैक्स फुल एंड फाइनल है, तो नॉर्मली टैक्स अथॉरिटी उसका ऑडिट नहीं करते क्योंकि उनको एक्सपेंसेस डिसअलाउ करने का फायदा कुछ नहीं है उसके अगेंस्ट, जो टैक्स आपने दे दिया वही फुल एंड फाइनल है। लेकिन जहां पे टैक्स आपका विदहोल्ड हो के एडजस्टेबल हो या मिनिमम टैक्स हो, वहां पे वो नॉर्मली ऑडिट करते हैं, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका जो लोकल बिजनेस है आईटी का,
is already subject to audit. Right. तो ये इसमें सिचुएशन होगी. ठीक. So वो लोग या वो कंपनीज जो जिस तरह पहले मेरे ख्याल नसीर साहब ने भी कहा कि 1% for them is not a if it's not a big amount for them and they want to avoid the hassle of sort of going through the entire process in the future, there are safeguards in the system जो उनको safeguard करेंगे against any future कि भाई आपने full and final कर दिया था लेकिन हम फिर भी कर सकते हैं. So that's good to know. Naseer Saab, I want to come to you and ask you about you sort of do business in Pakistan, you do business globally as well in various other countries. I know you have delivered solutions in Africa, in the Middle East, and other parts. What do you see, again, looking at the finance bill and some of the recommendations that we've been talking about, from your exposure globally and regionally, what are some things that make us uncompetitive? हमने बहुत से इनके बारे में बात की है, लेकिन from a regulatory standpoint, while as Sadia said, there've been some changes, लेकिन as Sadia might also be hearing, there is so much mistrust because of the experiences that we've had that the ease of doing business वाला तो सवाल ही नहीं है. तो आप अगर थोड़ा सा उस context में अगर share कर सकें when you see the finance bill and you see what you experience in other countries, how does that compare? मुजीब, उसमें as I said earlier, देखें ये it's a global wave और यहाँ पे भी ये होना है. The key is not 1% or exemptions. The key is that how simplify the tax authorities do the business with the businesses. उसको कितना वो फ्रिक्शनलेस रखते हैं और ट्रस्ट कैसे जो है ना वो होता है. लाइक फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीजें बहुत जल्दी हमारी जिंदगियों में से जाने वाली नहीं है कि ये नोटिसेस और वो जिसके बैंक अकाउंट में आपको पैसे नजर आए उसको वो भेज देंगे जस्ट टू फिल इन देयर टारगेट्स एंड ऑल दैट. ये जब तक के मेजर फंडामेंटल अप्रोच में चेंजेस नहीं आएंगी टैक्स अथॉरिटीज की, वो तब तक ये वी हैव टू लिव विद दीज थिंग्स. अच्छा, इसको जैसे सादिया ने बहुत शुरू में कहा कि वो उसको बाईपास करने के लिए STGA, जो कि बहुत कंट्रीज ने एक्सपेरिमेंट किया, सक्सेसफुल भी है, तो वो एक इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू तो हो चुका हुआ है, लेकिन आई थिंक उसको जो है वो अवेल करने में अभी बहुत टाइम है. फॉर एग्जांपल, एज ऑफ नाउ द कंपनी हैज टू मूव फिजिकली इनटू दोज STGA which are not going to happen 3 years from now. So what do we do? वो एक benefit तो है, but we can't avail that. तो उसमें मेरा ख्याल में ये है कि recommendations जो कि मैंने पहले भी दी हैं, we should emphasize on that कि जी जब तक कि आपके वो physical STGAs नहीं बनते हैं, give registered companies as an STGA registered companies और वहीं पे उनको वो status दे दें so that they start availing those facilities. ये कोई unlike other zones जो processing zones या वो नहीं है कि उसमें goods आती हैं, duty free आती हैं, bond में होती हैं, वो फिर convert होती हैं into goods, raw material जो आता है goods में convert होता है फिर export होता है. ये तो सर्विसेज हैं, आई मीन इट इज इनविजिबल. सो अगर आपने वो फैसिलिटी देनी है STGA की जो इंसेंटिव्स हैं वो अप्लाई करने हैं तो स्टार्ट डूइंग इट नाउ रादर देन 3 years. जी बिल्कुल नसीर साहब, दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट. और उसमें हमारे पास रीजनल मेघालय प्रेसिडेंट्स भी है. आई नो, आई एम वेरी फेमिलियर विद द फिलीपींस. वहां पर यू कैन गेट रजिस्टर्ड इन PEZA, इट्स द फिलीपीन एक्सपोर्ट जोन अथॉरिटी. और वो आप बिल्डिंग भी अपनी रजिस्टर करा सकते हैं. जो बिल्डर्स हैं वो अपनी बिल्डिंग को PEZA रजिस्टर करा सकते हैं और उसमें जो टेनेंट्स मूव होंगे that helps them get PEZA registration. Certain categories of companies can move. या आप कंपनी आपकी कहीं पे किसी भी बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी को PEZA रजिस्टर करा सकते हैं. उसके कुछ प्रीरेक्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन फिर आपको बेनिफिट्स वही मिलते हैं जो किसी भी PEZA रजिस्टर्ड कंपनी को मिल सकते हैं. वो किसी एक जगह पे आपको फिजिकली जगह पे होने की जरूरत नहीं है, which is a very interesting model. और दूसरा, I wanted to steer away from this, but since we've talked about STGA, it is very interesting that
the Ministry of IT, we met with them, MNCs अभी मिले उनसे, उसमें उन्होंने कुछ incentives का जिक्र किया, उसमें STZ का कोई जिक्र नहीं है. So the apex body that is controlling and running that entire is the guardian for that, right? If that's where it's run from. तो ये जो थोड़ी सी क्या इसको lack of coordination ही कहूँगा मैं, वो भी तो challenge है ना companies के लिए मेरे ख्याल में. बरकान, मेरा आपसे भी सवाल होगा. I would want it's an open question that how do you, as all of you are in key decision making bodies, how do we address this lack of I'll just say coordination for a lack of a better word. Mujib, where did you get this idea that we are part of the key decision-making bodies? We are not. Sir, sir, you are on the Prime Minister's Task Force for Technology. Sadia Sahiba is on the Anomaly Committee. We are part of some bodies that do decisions, but they don't get implemented. और बरकान, they only give recommendations. They only बरकान recommend. बरकान, अभी तो अभी वो एक नई बना है बोर्ड, नेशनल एक्सपोर्ट समथिंग बोर्ड बना है, नाम भी भूल गए थोड़े से. आई अपोलोजाइज एज अ मॉडरेटर, दिस इज माय वीकनेस कि मुझे कोई वो छोटा शॉर्ट चीट शीट प्रिंट करके लगा लेनी चाहिए थी जितनी कमेटीज और बॉडीज बनी है. आई अपोलोजाइज. लेकिन बरकान, आप तो बीइंग पाशा चेयरमैन, यू बीन पुट ऑन दैट 18, उसमें लिखा है 18 मेंबर हाई पावर्ड बोर्ड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स. तो मैं और सादिया साहिबा एनॉमली कमेटी में पूरे मुल्क की अच्छा, आपने वो आर्टिकल मैं आपको शेयर कर लेता हूँ अभी थोड़ी देर में. और सादिया साहिबा एनॉमली कमेटी पे हैं, उससे तो इतनी उम्मीदें वहां बसता है इतने लोगों की, जो जितने मसले हमने बताए हैं वो सब उससे सॉल्व हो जाएंगे. तो दैट इज व्हाट आई एम रेफरेंसिंग की डिसीजन मेकिंग बॉडीज. They are not decision makers, Mujib. They are not decision makers. They are only recommending. We can only recommend to those who actually make So decisions. चलें, I'll take my decision influencing. The way you are saying. decision influencing bodies. Let's agree on that. ठीक है जी, so because they're consultative. But Mujib, उसमें जो basic हमारे जो issues है ना, that is I don't know, और वो बहुत ज़्यादा वो expand हो रहा है, which is very dangerous. That वो जो आपने coordination का लफ्ज़ किया ना, वो I mean the best word to use is orchestration, क्योंकि एक common goal अगर है तो उसके जितने players हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, कॉमर्स है, फाइनेंस सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है, जो के दे आर आफ्टर गेटिंग द इकोनॉमिक थिंग्स इन प्लेस. तो वो एक बड़ा हमारा माइंडसेट है, और ये बड़ा फैलता जा रहा है कि आइसोलेशन में काम करना. एवरीबॉडी बिलीव कि वो जो है ना, उन्हीं का ये काम है इसको वो करना, और जो वो बिलीव कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं वो ठीक है, और बाकी के जो है ना डज नॉट मैटर. So I think it is part of that mindset कि वो STZA probably ये समझता है कि यार मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का तो इसमें कोई काम ही नहीं है. तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी कहती है कि जी हमसे पूछे बगैर जो है ना वो करें. बरकान पाशा का ये स्टैंड है कि जी हर मामले में हमें जो है ना वो शामिल किया जाए. तो मतलब कि वांट है सबकी, लेकिन ये है कि वो जो डिजायर है टू डू थिंग्स इवन विदाउट हैविंग कैपेसिटी और नॉलेज, वो बड़े क्रैक्स हैं उसके अंदर. तो वो ऑर्केस्ट्रेशन जो है ना वो बहुत यहाँ पे वो है, और वो दैट कम्स फ्रॉम द टॉप. वो पीएम का काम है कि सबको बिठा के बोले कि भाई ये करो यार, ये काम मिलके कर लो. तो हमारे साथ मसला ये है कि हम हो गए गलती से कामयाब. So everybody wants to own us, but nobody wants to do anything for us. So that is a जी, लेकिन आई एम सॉरी, वो हम थोड़ा सा मेरा शायद फॉल्ट कि मैं थोड़ा सा उसको डिट्रैक कर दिया मैंने. मेरा जो मकसद था सवाल का, कि जिस तरह सादिया ने भी कहा कि STZA का जो पूरा प्रोसेस है और सेटअप है, उसका मकसद है कि हम IT बिजनेसेस को फैसिलिटेट करें. लेकिन व्हेन वी सी दिस, हाउ डू वी इंटेंड टू देन यूटिलाइज यूजिंग द प्लेटफॉर्म. फाइनेंस बिल में अब अप्रूव हो गया है वो, जिस तरह नसीर साहब ने कहा कि उसमें अगर हमने उसको इस्तेमाल करना है, जो रीजनली बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. और सादिया, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा, आपका भी एक रीजनल व्यू होगा फ्रॉम अ टैक्स perspective. KPMG has presence across the board. आप लोग, I'm sure you look at competitive areas, and as I think was said earlier, not only just current ones, but when those countries started exporting or developing their IT sectors. But Barkan, to you, the same question: how do we? What can Pasha do
to bridge this sort of gap so that at the end of the day, organizations, IT organizations can use the maximum benefit from whatever policy that's out there for them, which is, right now we're talking about STZA. Right. So, I mean, certain things, Pasha can play a part, but certain things are too high level. So, if there is a problem between a minister and authority, and it's a political problem, or it's one not consulting with other, so definitely Pasha cannot also take sides as well. Or Pasha जो है वो जी. I have advised at least one authority. I mean, I would say that to the authority कि भाई आप isolation में काम ना करें and you involve with the people, involve with the stakeholders. And we as IT industry are one of the key stakeholders. Definitely अब वो ये कहते हैं कि this is not a IT zone, this is a science and technology zone, and you are one small component of it. So it is going to be a science and tech. So you are not the complete thing. So we have so many other things. But again, I think so far what is there in the STZA, the good thing is that Pasha, the benefits that we prepared, they were taken as it is. They took us in consultation, at least on the benefits. So we gave those benefits. Now the rules are out as well. The rules are fine. I mean, we don't have any major suggestion to it. One suggestion we do have is that आप साइंस को अलग रखें और आईटी को अलग रखें. प्लीज डोंट हैव मेरे साथ जो है मेरे ऑफिस के साथ फाइबर बनाने वाली फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए. So definitely we have given those suggestions. But I think but Nasir Saab is right that this government, there have been too many owners from, I mean, we had Tanya, we had Shabahat, we had now we have STZA, Amir Hashmi, we have a minister, we have Ministry of Commerce also trying to do something for us. So this is, I think, the job of the top people. We are not that, we are not, I mean, we can tell them कि भाई ठीक है आप, I mean, हम तो हरे के पास जा रहे हैं, हरे के साथ cooperate. जी. मेरा सॉरी प्रकार, मेरा मकसद पूछने का ही था कि हमारी कोलैबोरेट या हमारी कोऑर्डिनेशन तो इन सब स्टेक होल्डर्स के साथ चल रही है ना, as a representative body of the IT industry of Pakistan. I think the audience is very interested in knowing that we are, we're talking to all of these players, whoever, while there are many and we would want them to be less, but we are having conversations and trying to suggest consistency across the board. That's where, so that we can, again, my objective of asking is, जिस तरह सादिया ने भी कहा शुरू में, कि this is a key pillar of the strategy or incentives that the government is trying to give through the finance bill. So we need to make sure that our maximum members can take benefit from it. And Sadia, I'm sorry, unsurprisingly, audience से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं. बरकान और नसीर साहब, थोड़ी सी टेक्निकल नेचर के सवाल हैं. आप इजाज़त दें अगर तो मैं सादिया साहिबा से वो पूछ लूं. मेरे ख्याल में they should be quick answers. I think जी, so Shamim पूछ रही हैं कि why can't FBR make the exemption certificate online so it can be automatically generated if companies are compliant? Sadia Sahiba, as again being part of a key decision influencing body, what would be your thoughts on that? देखिए, एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी ऑनलाइन ही है, और जैसे कि मैंने बताया कि 15 डेज के बाद तो उन्होंने कंपनीज के केस में अभी ये किया है कि अगर वो कमिश्नर नहीं डिसाइड करता तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली IRIS का उसको ऑटो अप्रूव कर देगा. उसके बाद अगर कमिश्नर उसको कैंसिल करना चाहे तो ही हैज टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग फर्स्ट एंड हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको रिकॉर्ड करके फिर वो उसको कैंसिल कर सकता है. अब 15 डेज का कमिश्नर के पास टाइम है. पहले तो था कि अनलिमिटेड, यानी आप महीनों चेंज करते रहे एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और वो उस पर जो है वो कुछ करते ही नहीं थे, या फिर ये कि आपको तंग कर रहे होते थे फजूल चीजें मांग के. तो एटलीस्ट ही हैज टू टेक अ डिसीजन विद इन 15 डेज. अगर वो नहीं डिसीजन करता, कोई प्रॉपर रीजन देख के रिजेक्ट नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम कर देगा इशू. अब वो ऑनलाइन ही इशू होगा क्योंकि मैनुअल सिस्टम तो खत्म हो गया बहुत सालों पहले. जी. अगर आप कंप्लाइंट हैं तो पहले तो एप्लीकेशन आप डाल ही तभी सकते हैं अगर आप कंप्लाइंट हैं. ऑब्वियसली अगर आप कंप्लाइंट नहीं है, आप एप्लीकेशन डाल देते हैं और वो 15 डेज में अप्रूव भी हो जाती है और कमिश्नर की नॉलेज में आता है कि ये सर्टिफिकेट गलत इशू हुआ है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देके उसको कैंसिल कर सकता है. ठीक. अच्छा जी, हसन वदूद साहब पूछ रहे हैं जी, what is required for companies operating in Punjab with regards to sales tax, and is registration and sales mandatory even if there is no local sales? ये पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं.
जी, पंजाब के केस में जो आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज, अगर आप पैसा पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं तो उस पर उन्होंने एग्जाम्पशन दी हुई है। अच्छा, अब एग्जाम्पशन के केस में यानी पंजाब से उस पर नहीं लगता, आप लाहौर में बैठ के काम कर रहे हैं और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आईटी सॉफ्टवेयर, तो वो एग्जाम्प्ट है अगर आप पैसा पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। बट अब इस पे टेक्निकल डिबेट है कि जहाँ पे एक इनकम एग्जाम्प्ट है चार्ज ऑफ टैक्स से, तो क्या उस केस में सही से रिटर्न भी फाइल होना चाहिए कि नहीं। जिस पे कोर्ट डिसीजंस है वो तो ये है कि होना चाहिए फिर भी कि आप प्रॉपर रिटर्न फाइल करें और एग्जाम्पशन क्लेम करें, क्योंकि एग्जाम्पशन ऑटोमेटिकली नहीं मिलती, इट हैज टू बी क्लेम। तो ठीक उस है। पे ये है कि मिक्स प्रैक्टिस है आईटी सेक्टर की, कोई फाइल कर रहे हैं एग्जाम्पशन क्लेम करके, कोई नहीं फाइल कर रहे हैं। और अगर आप पैसा नहीं लेकर आते देन अगेन देयर इज नो एग्जाम्पशन। और अगर लोकल सेल्स नहीं है आपकी तो फिर तो ऑब्वियसली जो सादिया ने हसन आपके सवाल के लिए जो सादिया ने जवाब दिया कि मिक्स प्रैक्टिस है, आप अपने टैक्स कंसल्टेंट्स के लोकल साथ बात सेल्स पे तो करके। है सेल्स टैक्स, लोकल जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उस पे तो पंजाब सेल्स टैक्स है। जी जी, ये हम इनका एक्सपोर्ट सवाल था, जी जी, इनका सवाल था कि जिसमें जब इनकी कोई लोकल सेल्स नहीं है, ऑल आर ओके एक्सपोर्ट्स, तो ओके, उनका वो सवाल था। वो तो इमरान ऐसे अशरफ ही साहब, जी इमरान अशरफ साहब पूछ रहे हैं, प्लीज क्लैरिफाई, have IT services also come in the ambit of section 113 chargeable to minimum tax of 1.25? जी, लोकल सेल्स की हद तक जो 3% आपका टैक्स करता है वो आपका मिनिमम टैक्स है, वो एडजस्टेबल है अगेंस्ट योर इवेंचुअल कॉर्पोरेट टैक्स लायबिलिटी व्हिच इज कंप्यूटेड एट 29% ऑफ नेट इनकम। बट ये कि आपका 3% अगर उस इवेंचुअल टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है तो 3% रिफंड नहीं होता है, दिस इज मिनिमम टैक्स। और अगर Okay. आपका वो कम है तो डिफरेंशियल यू हैव टू पे विद द रिटर्न और क्वार्टरली एडवांस टैक्स की सूरत में। बट जहां Okay. तक एक्सपोर्ट की बात है तो वो मिनिमम टैक्स रिजीम नहीं है, वो फाइनल है, या ये कि आप उसको टैक्स क्रेडिट क्लेम करें। ठीक है, तो ये 113 सेक्शन का जो बता रहे हैं ये दिस इज समथिंग एल्स, बिकॉज आई हर्ड कि वो सेक्शन डिफरेंट है जो आपने पहले जिनका रेफरेंस किया था। अच्छा, इसके पीछे मैं आप जरा इसका आंसर जरा टेक्निकल है आपके इस क्वेश्चन का। 113 एक मिनिमम टैक्स का सेक्शन है, मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर, और ये बड़े अरसे से लॉ में एग्जिस्ट करता है। पहले लॉ ये था कि अगर आप कोई लॉस इनकर हुआ और आपकी कोई एग्जाम्पशन है, स्टिल यू हैव टू पे दिस मिनिमम टैक्स व्हिच इज यूजुअली अराउंड, पहले 0.5% रेट था इसका, फिर 1% हो गया, फिर 1.25% हो गया, दैट यू हैड टू पे अनलेस यू आर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मिनिमम टैक्स। यानी 113 से भी अगर आपको एग्जाम्पशन नहीं है, जिसकी अलग पूरा स्केड्यूल के अंदर पूरी लिस्ट है कि कौन सी कंपनियां मिनिमम टैक्स से एग्जाम्प्ट है। आईटी सेक्टर जो था वो हमेशा से एग्जाम्प्ट रहा है मिनिमम टैक्स से, जो 113 का टैक्स है, और वो ठीक है। एग्जाम्पशन अभी भी है। लेकिन अब उन्होंने ये किया, जब से इसको आईटी रिप्लेस किया है इन्होंने टैक्स क्रेडिट रिजीम के साथ, तो अब उन्होंने कहा है कि आप क्रेडिट ही क्लेम करेंगे, और जहां पे आप एलिजिबल हैं क्रेडिट के लिए तो आपको मिनिमम टैक्स से भी एग्जाम्पशन। ठीक और है। वैसे आपकी जो है ना प्रैक्टिकली अब होता क्या है, लोकल सेल्स पे आप 3% देते हैं, और जो आपकी एक्सपोर्ट सेल्स है उसके ऊपर आप 1% पे करेंगे, उसके अलावा अब आपने मजीद कुछ नहीं देना है। यानी 113 का टैक्स आप नहीं देंगे ठीक। क्योंकि आप ऑलरेडी लोकल सेल पे 3% दे रहे हैं। जी जी, नहीं, I think that was a very comprehensive answer. Thank you, Sadia. And Imran Saab, I hope this answers what you were asking for. If there's a follow-up, please do put it in the chat. और अच्छा, ये थोड़ा सा मैं I wouldn't expect that you would know all of them, Sadia, so maybe a brief overview would be good. Zahir Ahmed साहब पूछ रहे हैं जी, kindly explain all taxes rate for local IT services. तो अगर आपने एक लोकल दो तो आईटी मैं सर्विस के लिए देखें, जो इनकम टैक्स का रेट है वो 3% है ठीक है। आईटी इनेबल सर्विसेज के लिए, अक्रॉस पाकिस्तान है, क्योंकि इनकम टैक्स पे जो रेट होता है जो भी विद होल्डिंग का अक्रॉस पाकिस्तान लगता है। जो आपका सेल्स टैक्स का रेट है वो लोकल सर्विसेज के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन किस प्रोविंस में आप सर्विस दे रहे हैं और उसका इनवॉइस इशू कर रहे हैं वो वेरी करता है। सिंध में जैसे रेट जो है 13% भी जाता है, कुछ सर्विसेज पे 8% भी है। इस्लामाबाद के अंदर जो आईटी सर्विसेज का रेट है 5% है लोकल सर्विसेज पे, और अगर एक्सपोर्ट है तो 0 रेटेड है। पंजाब में जनरल रेट 16% है, एक्सपोर्ट है तो एग्जाम्पशन है अगर आप पैसे पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, और केपीके में 13% है, बलोचिस्तान में 15% है। Excellent. Wow. I love the fact that you remembered all of these right at the top of your head. Fantastic. I एक्चुअली hope that कर करके answers. आदत हो गई है ना, वो बार बार एक चीज कर रहे हो। जी बिल्कुल, इतने स्लो के सवाल पूछते होंगे, आई एम श्योर। I'll take a break. एक दो और भी सवाल आ रहे हैं टेक्निकल. I'll come back to them. Sadia will give you a break as well, and the audience too. I'll come to Barkan and Nasir Saab. Sir, if we, and again, I think you've covered this. This is going to just be reiteration. हम फाइनेंस बिल में अगर हम उसको देखें, उसमें जिस तरह हम सब ने डिस्कस किया कि कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज भी हैं जो अभी स्टिल एड्रेस करने की जरूरत है. What would be 2-3 things that we would
want. So again, my reason for asking is so that the audience here, our members and others, know very specifically कि जी हम चाह क्या रहे हैं, हम क्या 2-3 चीजें वो चाह रहे हैं जो गवर्नमेंट डिलीवर करे फाइनेंस बिल में. So I'll go first to Barkan, and then Nasir Saab, I'll come to you from your vantage point, and same question to both of you. First to Barkan, then to Nasir Saab. Barkan, please go ahead. I think number one is that, I mean, now that we are in the tax credit regime, if I know Sadia answered it very well, Kiji, there is already exemption and there is already a model. I think by giving an IT industry a hope कि जी आप इनके लिए एक automatic process कर दें, and we already know कि okay, S&P Global is filing withholding tax. The system knows it, so it does not need to go to the commissioner, and the tax credit system is given automatically. कि जी S&P Global in the system is already a sales tax compliant organization, already has withholding tax, already filed income tax return. Okay, tax credit, so no need to file, no need to go ahead and claim the credit. Pele definitely a risk tha before 1%, that if this 1% was not there, so the fallback scenario was 29% corporate tax. वो अब क्योंकि 1% full final हो गया है, and definitely उस पे एक अच्छी वो अंडरस्टैंडिंग पे आ गया कि चलें एटलीस्ट उन्होंने 1% कर दिया, तो 29% वाला रिस्क खत्म हो गया. दूसरी चीज आई थिंक ये कंपनीज के एंड पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो आई थिंक जो ये मल्टी प्रोविंशियल, आई थिंक उसके फाइनेंस बिल के अंदर नहीं आता, बट इफ एफबीआर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैन प्ले देयर रोल कि ये जो हम कभी सिंध वाले कह रहे होते हैं कि जी नहीं ये तो हमारा टैक्स है, या पंजाब वाले कह रहे होते हैं आपका टैक्स है, that thing, if something can be done on that from a local perspective, that would be very good for the industry. Or definitely minimum withholding tax for the local industry, if it can be brought at par with other industries which are incentivized, like even the textile industry is 1.25%. If it can be totally removed, that will be better, because again, nowhere in the world income tax पे इस तरह withholding tax लगाया जाता है. It's just, I mean, doing business in Pakistan is, as a local company, is just so difficult that I have to first, if I'm giving services to you, I'm paying something to you. I have to withhold 3%. Then I have, if you are in a different province, I have to give sales tax. And if maybe another province comes to me कि जी नहीं ये आपने classify गलत किया था, आपने S&P का license लिया था, तो ये product बन गया है, अब आपको मुझे इस पे tax देना है या उन्होंने tax देना है. So it's very difficult, and that is the reason why I think Pakistan may, because of these high sales tax. Even so, if I'm bringing a business from abroad and I want to give business to another company, it will be very difficult. The transaction would be very difficult because sales tax और इन चीजों में से rates बहुत high हो जाएंगे. तो गवर्नमेंट ने अगर डिजिटाइजेशन को सपोर्ट करना है, अब तो खैर गवर्नमेंट प्रॉब्ली वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिडिंग अलाउ हो गई है, तो अब तो शायद इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स आएंगे ही नहीं. मेरे नसीर साहब और सब लोग हम बैठे होंगे, सो आपस में ही गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो एक दूसरे को प्रोजेक्ट्स देना शुरू कर देंगे, तो वो तो शायद किससे ही खत्म हो जाएगा. नहीं, you become their subcontractors. Good one. So you become their exactly JVs आप कर लें और आप subcontractor. So I think ये 2-3 चीजें थी which I think the government do in this budget, at least from the financial side. हमारा मेन मसला ease of business का है. इससे हमारी ग्रोथ कितनी होगी वो, ये ease of business, ये एक एंटरप्रेन्योर को ease of business का माइंडसेट देता है. बहुत सारी बड़ी कंपनी मैं मिलता रहता हूँ. एक फाइनल बात यह है कि मैं लोगों से मिलता रहता हूँ. पीपल आर fed up. They have this sense of uneasiness कि यार what is this now, how they're treating us. So that is the main challenge के people. I met a company, $10 million उनका local revenue तकरीबन डॉलर्स में $10 million बनता है. तो वो उनके सीईओ मुझे कहते हैं, आप भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि मुझे दुख होता है कि मैंने कंपनी इतनी बड़ी क्यों कर ली है. मुझे उनको 20 करोड़ का नोटिस आया अभी एफबीआर का. तो वो कहते हैं कि यार I sometimes regret कि why I have increased the size of the company this much. So becoming bigger in size in Pakistan
I think sometimes it becomes a problem. I mean, even for you guys, S&P Global, look at yourself. Like, look at S&P Global. Like being the top exporter and being a recognized name, S&P Global. I think even the Prime Minister knows the name of S&P Global. But unfortunately, there is no one to listen to you. I mean, I have raised your issue multiple times at so many places, and there is no action on the ground, zero. जी हमारा भी वही, मैं आपको कहने लगा था कि उनसे मिलवा दें, हम खूब जमेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, हम उन कुछ हम गलत कर लेंगे उनके साथ बैठ के, बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। और आप अनफॉर्चुनेट है, मैंने ये यूज केस शेयर भी किया, वी हैड टू रिफ्यूज हायरिंग अबाउट 200 पीपल बिकॉज ऑफ द वो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हम करते जा रहे हैं कि टैक्स कमिश्नर्स को जब हम ये, और वो रिफॉर्म का प्रोसेस जब आप उसको पढ़ते हैं, जिससे सादिया ने एक्सप्लेन किया, वो सुनने में और समझने में बड़ा अच्छा लगता है कि यार तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लेकिन ऑन ग्राउंड उसकी जो इंटरप्रिटेशन है और उसकी जो उस पर जो एग्जीक्यूशन की जाती है, वो अनफॉर्चुनेटली इज देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन what's written and what actually happens. Nasir Saab, sorry, if you want to add 2-3 things that you feel big ticket items that we should do, and then I have a couple of other technical questions for you, Sadia. So just a heads up, I'll come to you after this. Okay. Yeah, जैसे वो सादिया ने मेंशन किया कि ये ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग टू सम एक्सटेंट है, बट आई थिंक अगर इसको एक्सपेंड कर दिया जाए तो टू ट्रांसलेटिंग द फाइनेंस बिल इनटू प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस, अगर उसमें अगर इंटरवेंशंस जो हैं वो निकाल दी जाएं, ग्रेजुअली करें, तो आई थिंक थिंग्स विल इम्प्रूव। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अब जिस तरह इन्होंने कहा कि जी आप ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन वो इधर इट विल बी एक्सेप्टेड ऑटोमेटिकली विद इन 15 days और इट विल बी रिजेक्टेड विद अ रीजन, and you are provided an opportunity to clarify or to submit कि जी आपका ये राइट है। इसी तरह आई थिंक इसको जरा थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करके इस लेवल तक लाया जाए कि नोटिसेस जो हैं वो भी ऑटोमेटेड अगर निकले तो एक्सेप्टेबल है। वो हाथ से लिखे हुए नोटिसेस जो है ना, वो वन फाइन मॉर्निंग वो कमिश्नर साहब की दराज में से कागज निकलता है और वो जुम्मे की शाम को आपके दरवाजे पे वो देके जाते हैं और मंडे को आपके अकाउंट पे जाके बैठ जाते हैं। ये वाली चीजें अगर सिस्टमेटिकली वो कर दिए और टेक्निकली इनको करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, टेक्नोलॉजी इज नॉट एन इशू। अगर वो 5 प्रोसेस ऑटोमेटेड हो सकते हैं तो 15 भी हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक वो एक उसके लिए एक पुश चाहिए टू द लास्ट माइल कि जी वो पूरे प्रोसेस जो है ना वो सारे उसी तरह कर दिए जाएं कि जी कोई कमिश्नर जो है ना उसकी डिस्क्रिशन ना हो, सिस्टम डिटेक्ट करे और वो जो है आपको जो है ना वो नोटिस इशू करे सिस्टम, देन इट मेक सेंस। तो इस तरह की रिफॉर्म्स जो हैं वो उनको जल्दी से जितना जल्दी कर लिया जाएगा, आई थिंक द कॉन्फिडेंस लेवल एंड ट्रस्ट लेवल विल इम्प्रूव। एक दूसरा वो जो इंटर प्रोविंशियल वो है, I think that's a long battle that we need to face because that is happening as a result of half-cooked 18th Amendment. वो रास्ते में आके कहीं फंस गई हुई है. It's not getting to its conclusion. Things like that कि यार goods and services both has to be a provincial subject और उसमें inter-provincial उनकी settlements जो हैं वो imagine if we had 20 provinces, we have to go and register in 20 provinces to do business with them. That is absurd. So खैर वो चीजें भी improve हो रही हैं, but अभी भी जो इसमें mismatches हैं और disconnects हैं और cracks हैं into the system, which actually points towards complexity in doing business और आपकी cost of compliance जो है वो इनक्रेडिबली जो है ना वो इंक्रीज होती है। इन चीजों को अगर कर दिया जाए और इसके लिए वो मेजर रिफॉर्म्स जो है ना वो चाहिए होती हैं, एंड आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल पुश, नथिंग एल्स। थैंक यू नसीर साहब। जिस तरह आपने कहा, आई थिंक जो हम सब बहुत दफा बात करते हैं ना, नॉलेज इकोनॉमी अगर आपने क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको प्रोसेसेस का और लॉज का और प्रोसीजर्स का एक फ्रेमवर्क चाहिए। नॉलेज इकोनॉमी में एक एंटरप्रेन्योर है, वो पाकिस्तान से बैठा काम कर रहा है और अब ये पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड
तो अब आई मीन कंपनीज हैं, हमारे रिसोर्सेज, आई एम श्योर और भी बहुत लोगों के, ग्लोबल कंपनीज ने रिमोटली रिसोर्सेज हायर करना शुरू कर दिए हैं। Absolutely. और एक एंटरप्रेन्योर है, वो कहीं पे भी बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के कहीं भी कंपनी रजिस्टर कर सकता है, कहीं पे भी पैसे मंगवा सकता है। बाहर कंट्रीज जो हैं वो बड़े इंसेंटिव्स दे रही हैं कि आप हमारे पास अपने पैसे रखवाएं, हम दुबई के बैंक्स वगैरह तो अब पेरोल सॉल्यूशंस दे रहे हैं टू पाकिस्तानी कंपनीज कि आप वहां पे अकाउंट रखें, हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे आपकी सैलरीज, कोई इशू नहीं है। सो उस एनवायरनमेंट में आई थिंक ये सब चीजें जो आप दोनों ने बात की वो बड़ा जरूरी है, और मेरे ख्याल में जितने प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनको पुश कर सकें उतना उतना बेहतर है। सादिया, कमिंग टू यू, दिस इज मुझे ऑडियंस। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी नसीर साहब जी की जी बातों प्लीज। पे। मेरे 2-3 जो सजेशन थी, उसमें एक जो सजेशन थी कि जो इश्यूएंस ऑफ नोटिस है वो ऑनलाइन होना चाहिए। तो इनकम टैक्स पे तो ये ऑनलाइन ही है। अब आपको मैनुअल नोटिस को अगर इशू करें तो उस पे एफपीआर का अपना सर्कुलर है कि इट शुड नॉट बी, आप उसको जो है ना वो टेकअप करें कमिश्नर के साथ, क्योंकि रिकवरी नोटिस से लेकर असेसमेंट ऑर्डर, शो कॉज, इट हैज टू बी ऑनलाइन। आपके आईआरआईएस पे आएगा, मैनुअल आप वो नहीं करते। सेल्स टैक्स जो है वो अभी भी मैनुअल है, उसका अभी तक पोर्टल प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, उससे मैनुअल कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। बट सेल्स टैक्स का एक इशू ये भी है कि वो चूंकि अब एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पे तो वैसे भी हर प्रोविंस अपने ही वो नोटिस निकाल रहा है और वो कर रहा है, वो अपना ऑनलाइन पोर्टल डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें इनकम टैक्स की हद तक ऑल ओवर पाकिस्तान इस वक्त मैनुअल खत्म हो चुका है, सारे का सारा ऑनलाइन है। और जहां तक आपने ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से यू आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन एवरी प्रोविंस, तो आपको 5 रिटर्न फाइल करने होते हैं। और ये इशू बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स ने उठाया, खासतौर पर टेलीकॉम सेक्टर को इस पर बड़ा मसला है। तो उस पर यूनिफाइड रिटर्न पे काम हो रहा है और एफपीआर इज ऑलरेडी इन कंसल्टेशन विद प्रोविंसेस ऑन दिस। उसका फॉर्म वगैरह डिजाइन हो गया और उसमें इश्यूज हैं कुछ, अभी उसको उन्होंने वो बीटा वर्जन उसका नहीं किया, बट दिस इज समथिंग ऑन व्हिच एफपीआर इज वर्किंग। तो वो आईटी सेक्टर से ज्यादा बैंक्स को और टेलीकॉम सेक्टर को बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको जी इनपुट अपॉर्चमेंट करना पड़ता है। फिर हर प्रोविंस सेपरेट नोटिस करता है कि जी इनपुट कैसे आप क्लेम कर रहे हैं, जरा इसकी बेसिस दिखाएं, अच्छा ये तो आपने वहां पे किया था इनवॉइस, यहाँ कैसे क्लेम कर लिया। तो उस पर काम हो रहा है और मोस्ट लाइकली उस पर हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर कि एक यूनिफाइड रिटर्न आप फाइल करें जिसमें आप हर प्रोविंस की जो है सर्विसेज सेपरेट डिक्लेयर करें, बट रिटर्न एक फाइल हो। जी चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए। मेरे ख्याल में वो एक आईटी कंपनी है जिसके अनफॉर्चुनेटली अगर वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो चारों प्रोविंसेस में काम कर रही है, तो उन बेचारों का तो फिर दे नीड अ सेपरेट मैकेनिज्म टू कीप ट्रैक ये ऑफ हाउ दे सबका गोना। है, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स का इशू है। जी जो भी खासतौर पे बैंक्स का तो बहुत ही है, बैंक और टेलीकॉम सेक्टर। जी इसमें एक इंटरिम ऑर्डर पास नहीं हो सकता कि अगर टैक्स पेयर ने पे कर दिया एक को तो दूसरा क्लेम ही नहीं कर सकता? आई मीन कॉन्स्टिट्यूशनली वो, मैंने अगर एफबीआर का बनता था और अब एसआरबी आके कह रहा है कि आपने मेरे पास देना, तो बस वो मैंने क्योंकि दे दिया है सो इट्स माय जॉब इज डन, ऐसा नहीं हो नहीं, सकता? बरकान वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है सादिया, वो उसके ऊपर काम हो रहा है लेकिन नॉट एज फास्ट एज इट शुड बी। ऐसा तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हाँ, इश्यूज हैं और जब तक ये 18th अमेंडमेंट एग्जिस्ट करती है ये इश्यूज रहेंगे, क्योंकि जो लॉज प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉज हैं वो ओवरलैप करते हैं। वो हर लॉ ये कहता है कि आप सर्विस ओरिजिनेट प्रोमिस में हो रही है तब भी हमें टैक्स दें, टर्मिनेट हो रही है तब भी हमें टैक्स दें। तो इस तरह तो काम नहीं होता ना कि मैं यहाँ से कराची कॉल करूँ तो उसका टैक्स जो है वो ओरिजिनेशन का टैक्स, उसका टैक्स जो है वो कराची को जाए, कराची से कोई कॉल है तो उसका टैक्स भी कराची को जाए, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो एक जी कुछ चीजें हमने प्रैक्टिकली प्रोमिसेस ने वर्कआउट कर ली आपस में कि जहाँ प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनेशन लॉ में नहीं लिखा हुआ, बस सर्विस जहाँ ओरिजिनेट हो रही है टैक्स उसी प्रोमिस को जा रहा है, बट ये लिखा हुआ कहीं भी नहीं है। चलें, एज लॉन्ग एज अगर वो जितना एक्सपेडिशियसली हो सकता है मेरे ख्याल में that'll be beneficial. जी Sadia, अब there are a couple of questions again from the audience. One is from Faisal Altaf Saab. I think आपने आंसर किया था लेकिन I'll still if you can maybe reiterate please. वो पूछ रहे हैं जी, I believe we have to register with SRB first in order to meet one of the prereqs for being able to apply for the exemption certificate. Should we apply first with SRB and then apply for the exemption? देखिए, अगर इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है और लोकल कोई सर्विसेज नहीं दे रहे और स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट है तो एसआरबी में वैसे एक्सपोर्ट के ऊपर एग्जाम्पशन है। अगर आप वही पंजाब की तरह अगर आप पैसे पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, तो अगर आपकी अभी तक की प्रैक्टिस रही है कि आप एग्जाम्पशन क्लेम करते रहे और एसआरबी ने कभी आपको कहा नहीं है कि आप यानी आप क्वालिफाई करते हैं एसआरबी की एग्जाम्पशन के लिए, आप पैसे एक्सपोर्ट के पाकिस्तान ला रहे हैं
और SRB ने कभी आपको कहा भी नहीं है रजिस्टर होने के लिए, तो प्रिमा फिशाई आपकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं बनती वहां पे, क्योंकि अब उन्होंने जो वर्डिंग्स लिखी है ना सेक्शन 65F में, उन्होंने कहा है कि इफ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रिटर्न देन यू शुड फाइल दोज रिटर्न्स and then claim income tax exemption. So if you are not required to file SRB returns because you are entitled to exemption under that law, then technically you should not be asked to get yourself registered with SRB. Makes sense. And जी, and Sadia, there are 2-3 questions all to the same topic. आपने वो बड़ा clearly explain किया था, but I will request कि एक दफा दोबारा आप the process of claiming exemption as of right now, because people still seem to be waiting कि जी कोई अलग से फॉर्म आएगा या अलग से आएगा. आपने शुरू में बड़ा वजाहत से बताया था. If you can please reiterate that, because कुछ 2-3 सवाल और उसके बारे में आ रहे हैं. अच्छा, उसमें ये है कि देखें, ये जो टैक्स क्रेडिट रजीम है ये आपके लिए तो अभी आई है, ये एनजीओस के लिए आ गई थी 3-4 साल पहले. तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो एनजीओस एलिजिबल हैं टैक्स क्रेडिट के लिए, आई मीन कुछ कंडीशंस है उसकी भी वो पूरी कर रही हैं, तो वो सेक्शन 159 के अंदर कमीशन से एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं अपनी ग्रांट्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, जो उनकी रिसीट्स हैं डिविडेंड से, कोई बैंक इंटरेस्ट से. तो जो एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं वो टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए, वो एक ही सेक्शन है पूरे ऑर्डिनेंस के अंदर, दैट इज सेक्शन 159. उसके अलावा कोई सेक्शन नहीं है जिसके अंडर आप जाके अपनी एप्लीकेशन IRIS पे फाइल कर सके. तो जो भी अभी भी उन्होंने सेक्शन 159 के अंदर अमेंडमेंट की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप एलिजिबल हैं टैक्स क्रेडिट के लिए, नॉट जस्ट नेसेसरीली एज एन एनजीओ अंडर सेक्शन 100C, also under section 65F. तो जहां भी आप टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल हैं, you can file an application under section 159 to the commissioner on IRIS, जो कि 15 डेज में उसने डिसाइड करनी है. तो फॉर्म इसका अलहदा से नहीं आएगा, एनजीओस के लिए भी नहीं आया. एक ही फॉर्म है उसके अंदर जिसके अंदर सारे अप्लाई करते हैं जब भी आपने 159 की एप्लीकेशन डाली. इवन अगर आपने इंपोर्ट्स पे भी एग्जम्पशन क्लेम करनी हो, जो सेक्शन 148 है जिसका, तब भी आप 159 के अंदर ही एप्लीकेशन फाइल करते हैं. तो आप किसी अलहदा फॉर्म का ना वेट करें, आप उसी में जाके एप्लीकेशन अपनी डाल दें. जबरदस्त. this is very helpful because as I said, ये हमारे जो ये पाशा के व्हाट्सएप ग्रुप्स का है, उस पे कम से कम अगर हम कोई काउंट करें तो मेरे ख्याल है 50-60 लोगों ने तो ये सवाल पिछले 2-3 दिनों में लाजमन पूछा है. सो आई होप इट इज हेल्पफुल. तला अगर हम इसका एक स्निपेट सा बनाकर मेरे ख्याल में लोगों से भी शेयर कर सकें, सादिया साहिबा से वेट करा लें एक दफा, ताकि लोगों को क्लैरिटी प्रोसेस की आ जाए कि जी आपने कौन से सेक्शन में जाके किस तरह एग्जेम्पशन फाइल करनी है. मैंने जिस तरह कहा कि ये तो हमें भी हमारे फाइनेंस को भी नहीं आइडिया कि ये करना है. अगर आप लोगों को आइडिया हो जाए तो हमारा हमसे पूछेगा कौन, आप लोग आइडिया नहीं होना चाहिए. हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है. नहीं जी, हमने आपसे पूछा हुआ है ऑलरेडी. सॉरी नसीर साहब, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, आई कॉम्प्लीमेंटेड कि बिल्कुल ठीक है. ये इनके लिए बिजनेस भी तो रहना चाहिए ना. हमारे क्लाइंट सारे खुद ही एप्लीकेशन डाल के खुद ही जाके वो करा ले, तो हमसे किसने पूछना. That's right. जब सादिया अगेन ये बहुत ही कुछ शदीद टेक्निकल सवाल सा है, मैं कोशिश करूंगा पूछने की. दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, वी विल रैप अप आफ्टर दिस. अस्सलाम वालेकुम मैम, इन सेल्स टैक्स रिटर्न we don't have a specific place in Annex D exports for reporting IT exports, and currently we either report it in Annex C or don't report sales. तो इसमें सब उन्होंने लिखा है ये सवाल. इसका आंसर ये है कि बेसिकली आपकी बात बिल्कुल ठीक है. ये इन्होंने जीरो रेटिंग तो की भी अभी है, लाइक अभी ये 1 जुलाई से इसकी जीरो रेटिंग आई है, पहले तो ये थी भी नहीं. जो आपका सेल्स टैक्स का रिटर्न है, जीरो रेटिंग है भी सिर्फ इस्लामाबाद में जो आप सर्विसेज दे रहे हैं किसी बाहर की कंपनी को, उसकी हद तक है. जो प्रोविंसेस के सेल्स टैक्स लॉज है उसमें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है जीरो रेटिंग का. उसमें तो या एग्जम्पशन है या टैक्सेबिलिटी है. तो हम वापस आ जाते हैं FPR के फॉर्म पे, जो इस्लामाबाद की हद तक एप्लीकेबल है. आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि उसमें नहीं है, बट ये अमेंडमेंट आ जाएगी क्योंकि ये अभी से एप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई से. सो FPR विल ब्रिंग दिस फॉर्म को मॉडिफाई वो कर देंगे जैसे उनकी नॉलेज में ये चीज आती है. हो सकता है इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो उसको आप फिलहाल गुड्स में डिक्लेयर कर दें, जो आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का होता है उसके साथ कर दें, बट ये कि बाहर वो जीरो रेटेड है. Ji Bilal Saab, I hope that answers your question. With that, Ji, we will look to wrap up. We're on time. I would like to thank everybody who joined us in the audience this evening. I would especially like to extend my gratitude on behalf of Pasha as well to Nasir Saab, Barkan, who's enjoying rainy Karachi today, and Sadia Sahiba, aapke जी, and Sadia enjoying जो है थोड़ा सा
It was meant to be. It was meant as a pun. So enjoy as much as you can, Barkan. And Sadia Sahib, especially to you. आपने मेरे ख्याल में बहुत सारा एक बहुत बड़ा जो की सवाल बड़े पिछले 2-3 दिनों से बार-बार आ रहा था, उसको आपने आंसर करने की कोशिश की. Thank you so much. And again, I hope that the discussion was useful for everybody in understanding what is time being spent on in order to facilitate and create policies and frameworks that enable organizations in the IT sector to progress. And obviously, eventually, all of us are doing it because while there are interests for the companies, there's a much broader and much deeper, longer term interest for the country as well. So I think everybody's trying to play their bit from all perspectives that they can. So with that, we'll conclude, Ji. Once again, I thank all our panel members today for your time, your expertise, and your patience. Thank you very much, everyone, and have a great rest of the evening. Thank you, Ji. Thank Thank you. you. Thank you. Thank Bye you. bye. Allah Hafiz. Hafiz.